Hello students, welcome you in the second lecture of this lecture series on electricity and magnetism for IIT aspirants at this platform of Physics Foundation. In first lecture, we discussed about the syllabus of this portion and also we talked about the Coulomb's law and we discussed one problem based on that which was asked in previous year exam. Today we are going further. So today we are thinking to planning to explain you electric field, electric flux, electrostatic potential energy, and electrostatic potential, and the relation between electric field and potential. So we know the if there are two charges Q1, Q2, and they are separated by a r distance, then from Coulomb's law, the force between them is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square, and the direction is r cap. This we learned in previous class. Now let us try to define electric field. Electric field. Electric field is represented by E and it is a vector field. So if there is a point charge, Q, and because of this charge, there will be some electric field at any point if we want to know. So let us say this is a point P where we want to know what is electric field. So what we can do, we can take a test charge Q0, put it here, and from Coulomb's law, we know what will be the force acting on this. So electric field can be defined as the force acting on test charge Q0 divided by the charge. So the unit will be Newton per Coulomb. So also we can write this in terms of, like we know the expression for Coulomb's law, we can write expression for electric field 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square r cap. So this is electric field. If there is a point charge P, point charge Q, and at a point P where we want to know electric field, and we know this is r distance, then that is how we can define electric field. Electric field इस फील्ड के साथ हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज लाइन ऑफ फोर्स. लाइंस ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? इफ दिस इज ए पॉइंट चार्ज, लेट अस से इट इज ए पॉजिटिव चार्ज, सो द फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड. इट इज लाइक दैट. And for negative charge, these are inward. So these lines are imaginary lines. It has some importance that the line, if at any point P, if you want to know what is the direction of electric field, the tangent to this force, line of force, is given by the tangent का जो है वो direction बताता है. And number of lines, if there are more number of lines passing through a surface, so we say its intensity. Number of line is proportional to the intensity of electric field, or you can say strength of electric field. The more lines means more electric field. So now there is something we can define electric flux. Electric flux is defined, is represented by phi in general, and it is equal to surface integral of electric field E dot ds. So if there is a closed surface, so its surface integral
will give electric field. And something we can define, that is electrostatic potential. Electrostatic potential. Potential is a vector quantity. It is generally represented by V, and if it is defined as if you take a charge Q from infinity to the point, the work done in this process is equal to the potential or electrostatic potential energy at that point. So similarly, like we define electric field here, similarly if there is a point charge Q and there is a point P, here we want to know electric field. So electric field is defined as 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. So this is electric potential, this is electric flux, this is electric field, and at the same time, let us try to define the relationship between E and V. Relationship between electric field and potential V. So 12th में जब पढ़ते हैं हम तो बहुत ज़्यादा वेक्टर यूज नहीं करते at that time. We generally consider in one dimensional. So we used to write E is equal to minus dV by dx. Here it is not, we will not take that simplest form. We will write in vector form, and we consider all dimensions, three-dimensional space. For three-dimensional space, E and V are related as E is equal to minus del V. Means del हम लोगों ने पिछले क्लास में बात नहीं किया. It is a vector operator. It is defined as I del upon del x j del upon del y plus k del upon del z, where I, j, k are unit vector in x, y, z directions. So it is in Cartesian coordinates. There are different coordinate systems. We are not discussing here. Later on, if it is required, we will discuss. So there are spherical coordinate system, there are cylindrical coordinate system depending upon the symmetry. We look forward towards that. This thing we can even prove, but at this stage I don't want to go into unnecessary details. So let us keep this relation. I think you are familiar with this relation. If not, then you just try to look this equation, and this is very simplest form. यहाँ पे हम लोग वेक्टर भी नहीं लिख रहे हैं इसको, और we are putting it in one dimensional situation, and this is general form. So this is more relevant. Here we will be using this relation. Another thing I want to define electrostatic energy, electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. It is generally represented by capital U, and if there are charges Q1, Q2, and they are separated by an R distance. So for this system, the potential energy is defined as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R square. Okay, this is potential energy. If there are more number of charges, so we will put all pairs here and add it. Okay, so this is electrostatic potential energy. So we learned some few definitions, some basic concepts on in electrostatics, like what is electric field, what is electrical flux, electric flux, what is electrostatic potential, and what is the relationship between electrostatic
potential and electric field and electrostatic potential energy. So we have learned Gauss law to evaluate electric field due to a point charge. So if there is charge distribution over a surface, एक surface पे distributed है या कुछ body पे charge distributed है, तब हम लोग क्या करें? Coulomb's law is valid for only point charges. So there is another law which will be utilized to evaluate electric field strength at some point due to charge distribution. So that law is known as Gauss law. So I am introducing Gauss law also. Gauss law क्या है? Gauss law बताता है कि कोई सरफेस है, उस पे मान लो हमने Q चार्ज उसके अंदर इनक्लोज्ड है. So the flux passing through this surface, so normal flux passing through the surface is given by normal flux. And the flux कैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी लास्ट टाइम जब हम फ्लक्स डिफाइन कर रहे थे? दिस इज फ्लक्स. फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So normal flux are surface integral of electric field E dot ds is equal to charge enclosed this closed surface. ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर जो वॉल्यूम में कितना टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो वी आर फैमिलियर विद ऑल टर्म्स. दिस इज गॉस लॉ. ओके, अब इतना समझने के बाद हम लोग कुछ बेसिक डिफिनेशंस रिवाइज किए हैं. हमने कोई डेरिवेशन नहीं किया. डेरिवेशन की अभी हमको लगता है कोई ज़रूरत नहीं है. जब आगे हम ज़रूरत समझेंगे तो हम इनको थोड़ा और डिटेल में करने की कोशिश करेंगे. बट यू जस्ट गेट टू इंट्रोड्यूस दीज फ्यू रिलेशनशिप्स. ये सब आप पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ भी चुके हैं. इनके डेरिवेशन के डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं. अब थोड़ा सा ये देखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पे बेस्ड किस तरह के सवाल पिछले सालों में पूछे गए और उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से कर सकते. तो बेसिक तैयारी का फॉर्मूला यही है, कॉन्सेप्ट्स को समझें, जाने, फॉर्मूलाज को जाने और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस करें. जैसे सवाल प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रांग होते जाएंगे और आप अननेसेसरी डिटेल से बचे रहेंगे. So let me read this question for you and see whether we can solve it or not. Here they are asking electrostatic energy density. हम लोगों ने electrostatic energy density अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है. So electrostatic energy density जो होती है ये हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं. या तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी को समझें या फिर इसको अभी स्किप करते हैं. लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. यहां पे क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज दिस एंड व्हाट विल बी द टोटल चार्ज इनक्लोज इन द स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट द ओरिजिन. तो एक सरफेस डिफाइन कर दिया कि एक स्फीयर है जो ओरिजिन में और उसका रेडियस यूनिट रेडियस है और ये इसका सेंटर ओरिजिन है. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है. पूछ क्या रहा है? टोटल चार्ज उसके अंदर कितना इनक्लोज्ड होगा. इस चार्ज को हमको बताना है. तो अब आप समझ गए होंगे जो हम लोगों ने गॉस लॉ का फॉर्मूला पढ़ा है वो यहाँ यूज होने वाला है. गॉस लॉ का फॉर्मूला हमने पढ़ा. This is not this is E dot ds charge enclosed by epsilon. Surface integral of electric field is equal to charge enclosed by epsilon. तो हमको charge enclosed पूछ रहा है तो we need to know this. For that we need to evaluate surface integral of this.
और क्या ये सरफेस कैसे डिफाइन किया है? सरफेस है यूनिट स्फीयर, यूनिट रेडियस का एक स्फीयर है जो ओरिजिन पे सेंटर है. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिफाइन एज, एक चीज और यहां पे समझ लेते हैं, ये ई डॉट डी एस, तो डी एस जो है ये वेक्टर ट्रीट किया जा रहा है. यहाँ पे एरिया को जब हम वेक्टर ट्रीट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्मल, जहां पे सरफेस पे है उसके नॉर्मल. तो ये अगर हम लोग स्फीयर की बात करें तो जो कि आर रेडियस का एक स्फीयर है, तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर. यहाँ पे बोलेंगे तो ये इसका नॉर्मल, यहाँ पे इसका नॉर्मल. तो इसका मतलब क्या है? जो इसका नॉर्मल है, मतलब एन कैप अगर हम लोग कहें, दिस इज सेम एज आर कैप, मतलब आर की डायरेक्शन में ही इसका डायरेक्शन हो गया. सो नाउ लेट अस ट्राई टू डिफाइन दिस. हम लोग गॉस लॉ लगा दें. यहां पे गॉस लॉ क्या कहता है? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. सो ई हमको यहां पे दिया हुआ है, लिख देते हैं 1/r अल्फा आर कैप प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई फाई कैप. ये हो गया ई डॉट डीएस. डीएस का हम क्या लिख देते हैं? डायरेक्शन लिख देते हैं यहां पे, और डीएस ऐसे ही लिख लेते हैं. सो ई डॉट डीएस इज इक्वल टू दिस. अब एक चीज समझते हैं, इसमें आर कैप है, फाई कैप है, तो ये क्या है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दिया हुआ है, एक्स वाई जेड में नहीं, आर थीटा फाई में दिया हुआ है. तो अब इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आर कैप है, ये आर कैप है, तो आर कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है, और थीटा हो जाएगा, इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों सेम है. लेकिन फाई डॉट एंड आर कैप ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल बहुत, ये कितना है? 90 डिग्री है. So this equation, now you come to this equation, this is equal to 1/r अल्फा, और ये r डॉट हो गया 1, और ये हो गया ds. ठीक है. नाउ सो अब ये जो r है, बेसिकली r कितना है? हमको दिया है r है यूनिट रेडियस, यानी r इज इक्वल टू 1. तो यहां पे ये हो जाएगा 1. तो ये हो गया अल्फा ds. अल्फा इज ए कांस्टेंट, या अल्फा के बारे में हम लोग यहां पे देख सकते हैं, ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन दिस एरिया. ये हमने जो छोटा सा एरिया ds कंसीडर किया है यहाँ पे, इस पे डिपेंड नहीं करता. तो हम लोग इसको बाहर ले लें, अल्फा ds. तो ds ये है छोटा सा एरिया इस स्फीयर का, और टोटल स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर अल्फा. और गॉस लॉ से इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इसकी वैल्यू है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया? चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और अल्फा. Let us look at the options now. So you see, this is the option. This is the correct option. So ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. डायरेक्टली गॉस लॉ पे बेस्ड है. आप अगर गॉस लॉ का फॉर्मूला समझ रहे हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको है, तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. I think everybody understood how we are doing it. Now, अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं. ये सवाल है
इसमें दिया है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बाय, और इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिन पे क्या होगा ये पूछ रहा है। अब सोचो कि हम लोग जो समझ रहे हैं उसमें से क्या करने वाले हैं, इसमें कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज समझाया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे इसका नाम है उसी से आप इसको समझ सकते हो। इक्विपोटेंशियल मतलब ऐसा सरफेस है जिसके सरफेस पे सारे जगह पे पोटेंशियल बराबर है। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बताया कि कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कुछ ऐसा सरफेस है जहां पे सारा जगह पोटेंशियल बराबर है। इट्स गिवन बाय दिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो मजेदार बात यह है कि हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, वो रिलेशन अगर हम लोग यूज करें तो V दिया है और E निकालना है, आराम से किया जा सकता है। कैसे करेंगे, हमको दिया है VI इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ, ठीक है। एंड वी नो E इज इक्वल टू माइनस डेल V। डेल का फॉर्म में लिख दो, V का फॉर्म में लिख दो, माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के कैप डेल अपॉन डेल जेड लिख दिया। और V का वैल्यू हम लोग को जो पता है ये लिख दिए। तो V कैसा है, स्केलर फंक्शन है, यहां पे कोई वेक्टर का बात है ही नहीं। तो ये फंक्शन सब जगह जाएगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे और y और z इसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो नाउ माइनस आई कैप, इसको x के लिए डिफरेंशिएट करें तो क्या है, ये दोनों में तो x है ही नहीं, तो ये जो टर्म कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये हो गया 8x आई कैप प्लस j, y के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस 2 प्लस z के लिए क्या करेंगे, k, ये हो जाएगा 2z, ठीक है, हो गया। अब ये कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको एक्सप्रेशन मिल गया। अब ये पूछ रहा है हमको ओरिजिन पे, ओरिजिन मतलब 0, 0, 0, मतलब एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 0 रख दें यहां पे। तो E एट ओरिजिन इज गिवन बाय माइनस, ये हो गया 0, ये हो गया -4 j और k भी 0 हो गया। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, दिस इज 4j। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे क्या आई जे कैप दिया नहीं है, आई जे के कैप जो है हम लोग यूज किया, ऐसे नहीं दिया। यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप दिया है। तो हम लोग ये जानते हैं आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, सो यू कैन राइट दिस एक्स कैप वाई कैप जेड कैप आल्सो। तो ये 4j मतलब 4y कैप, 4y कैप कौन सा है, ये ऑप्शन है। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो फ्रॉम नोइंग दिस रिलेशन वी कुड डू दिस क्वेश्चन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। सो हमको इसके डेरिवेशन में हम नहीं गए और हमने इस पे बेस्ड जो सवाल है उसको देखा, ठीक से कर पा रहे। सो बाय डूइंग प्रॉब्लम्स we will learn concepts eventually. So my idea of teaching is you do more and more problem and do necessary theoretical part. जो बहुत जरूरी है उतना ही पार्ट पढ़ें, बिना मतलब के बहुत सारे डिटेल डेरिवेशन में यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, इसकी हमको जरूरत नहीं है। ये जो एग्जाम है उस एग्जाम बेस्ड हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये सारा डिटेल डेरिवेशन किए जाएं तो आप बताएं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसकी कितना रेलेवेंट तरीके से हम लोग ये सब कुछ भी कर सकते हैं।
यहां पर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे बेस्ड सवाल है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द सेंस वी हैवंट डिस्कस इन दैट केसेस। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिफाइन नहीं किया। ये एक सवाल और है जिसको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। जो हम लोगों ने अभी तक आज जो कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ 2-3 डिफिनेशन, उन पे बेस्ड सवाल, ये सवाल को कर सकते हैं। ये सारे सवाल जो हमने लिखे हैं ये जैम के पिछले साल के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो एक इसको पढ़ते हैं। ए चार्ज Q इज एट सेंटर ऑफ 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स। 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, मतलब ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है। इन दोनों का सेंटर एक ही है। बहुत अच्छा स्फीयर मैंने ड्रॉ नहीं किया। सो लेट अस ट्राई टू मेक इट थोड़ा सा बेटर बनाने का कोशिश करें। एक ये स्फीयर है और एक ये स्फीयर है, दोनों का सेंटर एक ही है। और ये क्या कह रहा है कि आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द इनर स्फीयर इज फाई। इनर स्फीयर से जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो फाई है, और जो आउटर स्फीयर है उससे 2 फाई है। तो चार्ज इस रीजन के बीच में, ये जो रीजन है इन दोनों के बीच में, इसमें कितना चार्ज है ये पूछ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं फ्लक्स, और इसके बेसिस पे जो लॉ है क्या है, गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने पढ़ा है। ये कहता है टोटल नॉर्मल फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले केस में जब हम लोग इनर स्फीयर की बात कर रहे हैं, इनर स्फीयर केस में क्या है, फाई है, और इसमें चार्ज मान लें क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है। क्यू चार्ज उसके सेंटर पे रखा है तो उसका इनक्लोज चार्ज यही हो जाएगा, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वी कॉल इट इक्वेशन 1 फॉर आउटर स्फीयर। इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि फ्लक्स कितना है, 2 फाई है, और हम चार्ज इसमें कितना इनक्लोज्ड है हमको पता नहीं। एक चार्ज ये पता है, लेकिन इसके बीच में भी कुछ चार्ज है, वही चार्ज को हमको पता करना है। तो हम ये कह दें इसके बीच में मान ले टोटल चार्ज इनक्लोज है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यही चीज हमको पता करना है कि टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है अभी। तो ये हो गया Q इज इक्वल टू 2 फाई एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इक्वेशन 1 से फाई का वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो 2 Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, ये आ गया 2Q। तो ये इस स्फीयर के टोटल अंदर चार्ज इनक्लोज है 2Q, और छोटा वाला जो स्फीयर है उसमें चार्ज इनक्लोज है Q ये सेंटर पे रखा है। तो दोनों के बीच में चार्ज कितना हो जाएगा, जो पूछा जा रहा है चार्ज इनक्लोज बिटवीन द रीजन इज गिवन बाय Q माइनस Q, एंड दैट इज इक्वल टू 2Q माइनस Q यानी Q। तो कौन सा आंसर सही हो गया, Q इसमें दिया है B में। दिस इज द राइट आंसर। So by knowing just Gauss law, we could solve these problems. So these are few problems. We learned some new concepts, and we discussed few more problems based on this. And this is how questions are asked in this exam. And I'm looking forward for your feedback, for your response कि ये आप कैसे चाहते हैं। क्या हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके सवाल सॉल्व करें, या थ्योरेटिकल पार्ट को हम और ज़्यादा फोकस करें और डिटेल में जाके धीरे धीरे उसको समझाएं। आप अपने फीडबैक दें, तो जिसके बेसिस पे हम आगे के लेक्चर्स को उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी का पार्ट आप नेसेसरी पार्ट पढ़ें और प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उन प्रॉब्लम्स को ठीक से समझें। आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ रही हैं? क्या आप इनको समझने के बाद ऐसी सिमिलर प्रॉब्लम्स
आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आप लोग अपनी राय दें, अपने कमेंट्स में लिखें, जिससे कि हम आगे के लेक्चर्स को उसी डायरेक्शन से प्लान करें। और आगे हम अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लाइव क्लासेस भी कर सकते हैं। जैसा कुछ आपकी राय हो, अपनी राय जरूर साझा करें। और इसी तरह हम फिर एक अगला लेक्चर लेके आएंगे। जैसे कुछ आप लोग बताएंगे उस हिसाब से हम अपने आगे के लेक्चर्स को थोड़ा ठीक करेंगे। अभी शुरुआती दौर है, इसलिए हम थोड़ा आपका रिस्पॉन्स समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और उसी हिसाब से थोड़ा आगे इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। टुडे वी आर कीपिंग इट क्वाइट शॉर्ट, और अगले क्लास में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।